Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. One of our subscriber put a RTI to State Bank of India. And in this RTI reply, they have shared some data about retirement in State Bank of India in coming years. And the question raised by this subscriber is, sir, analyze this data and tell us what is the fate of recruitment in State Bank of India in future. Now, as per this data in State Bank of India, in 2021-22, 4,324 officers and 3,312 clerks will retire. Next year, 4,679 officers and 2,825 clerks will retire. In 2023-24, number of officers retired will come down to 3,710 and clerks will be 2,961. In 2024-25, the figure will further come down. Officer 2,778, clerk 2,691. In 2025-26, the figure will further come down. Officer 2,259 and clerk 2,282. Now, in my earlier videos also I told after 2023, there will be marked fall in number of retirements in banking industry and number of promotions as well as recruitment will drastically fall in lieu of retirements. Now you see, even 21-22, total workforce retiring is just 7,600 in officer and clerk cadre. And already they are in process of recruiting 8,600 clerks, 2,000 PO and 3,500 CPO. How much is this? This is close to 13,000. That means their aim is to reduce the staff, but already they are recruiting more than that. Next year again 4,600 plus 2,800. The total retirement in officer and clerk cadre put together will be around 7,000 only. Naturally, number of vacancies may fall. Another year, it will come down to 6,600 retirement only, officer and clerk. So, it is indicating of further fall in vacancies. So, as retirement will fall in coming years, the natural conclusion is that the vacancies will fall. Because once they take as clerk, some of them may become officer. So, some officer vacancies are filled by them. And so, against clerical retirement, they require people to replace, as well as for the replacement, those have been promoted to the next higher cadre. And that's why the total intake, officer plus clerk, will be around 80% of total outflow, that is the total retirement. So, in a particular year, if we are expecting that 6,600 people will retire, the 80% of that may be around 5,000. That means the clerical plus officer intake will be around that. And that's why I always say, these are golden years. You should work hard and get into the banking industry. In future, there may be fall in vacancies. That is evident from every data which you are gathering. This I have made it clear well in advance. From my memory basis, I told you, but now people are taking hard data also just to verify what I told, and now it is the same confirmation. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक RTI लगाई स्टेट बैंक पे, ये जानने के लिए कि रिटायरमेंट का क्या ट्रेंड है. स्टेट बैंक ने जो आंकड़ा दिया है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. 2021-22 में उन्होंने बताया कि 4,324 ऑफिसर और 3,312 क्लर्क रिटायर होंगे. उससे अगले साल 4,600
79 ऑफिसर और 2825 क्लर्क रिटायर होंगे। 2023-24 में 3710 ऑफिसर और 2961 क्लर्क रिटायर होंगे। 2024-25 में 2778 ऑफिसर और 2691 क्लर्क रिटायर होंगे और 2025-26 में ऑफिसर 2259 और क्लर्क 2282। अब यहाँ बड़ा क्लियर ट्रेंड है कि अगले 4 साल में आते आते रिटायर्ड लोगों की संख्या आधी हो गई है। अगर रिटायरमेंट आधी होगी तो रिक्रूटमेंट आप समझ सकते हैं कितनी होगी। अगर आज हम देखें तो जो इस 21-22 का ये दिखा रहे हैं 7600 रिटायरमेंट दिखा रहे हैं। नॉर्मल पॉलिसी है 80% रिप्लेसमेंट की, तो 5600 रिक्रूट होने चाहिए। रिक्रूट कितने कर रहे हैं? 8600, 2000 पीओ, 3500 सीबीओ। इससे क्या हिंट है? अगर वो अधिक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं देन रिटायरमेंट, दैट मीन्स रिटेंशन रेट इज लो। तो बैंक को ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग आएंगे इसमें से काफ़ी लोग छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए वो उस परसेंटेज में रिक्रूटमेंट कर रहा है जिससे उसको लग रहा है कि इतने लोग मिल जाएंगे जो रिप्लेस कर सके रिटायरमेंट को। पर जैसे जैसे जॉब स्केयर होती जाएगी, स्कैर्सिटी बढ़ती जाएगी, जो कि एविडेंट है, तो रिटेंशन रेट भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज ही श्रिंक होती चली जा रही है तो नेचुरल है जिसको जहां भी जॉब मिलेगी वो उसी में अपना कैरियर बनाने की कोशिश करेगा और वो फर्दर प्रेशर डालेगा वैकेंसीज के ऊपर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देने का मकसद ये होता है कि अभी आपके पास वक्त है, जो हमारे सामने एग्जाम्स हैं उसको हमें मन लगा के तैयारी करनी है ताकि इसी में पास होना है। अब जो लोग एलिजिबल ही बाद में होंगे उनकी तो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। जो हार्ड डेटा है वो बदला नहीं जा सकता। सिर्फ हम प्रे ही कर सकते हैं कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए कि लोग छोड़ के चले जाएं बैंक और इनको मौका मिल जाए, या इकोनॉमी में ऐसा बूस्ट आ जाए कि बहुत स्टाफ की जरूरत पड़ जाए। अब ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है। आल्दो वीआरएस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। अब वीआरएस में भी जो लोग एलिजिबल हो रहे हैं वो इन्हीं 5 साल के रिटायरमेंट वाले हैं। तो वीआरएस का सिर्फ इफेक्ट इतना ही आएगा कि जो वैकेंसीज फ्यूचर ईयर्स में आनी थी वो इसी साल से भरी जाए। और हो सकता है कि जो इस एसबीआई ने रिक्रूटमेंट की है 8600, 2000 और 3500 सीबीओ की, वो यही नज़र में रख के कि अगर 30% लोग ऑप्ट कर देते हैं वीआरएस के तो वो उन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस चालू कर दिया है ज़्यादा वैकेंसीज का। ये भी हो सकता है। तो इससे कोई वीआरएस से ये नज़र नहीं आ रहा कि फ्यूचर में वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। उससे बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, वो तो क्या रिस्पांस आता है। पर ये जो 5 साल में लोग रिटायर होने वाले हैं ये वही लोग हैं जो वीआरएस में आएंगे, क्योंकि 55 साल एलिजिबिलिटी है। तो इससे जो हमारा अगले 5 साल का सिनेरियो है वो बदल नहीं रहा रिक्रूटमेंट का। सिर्फ क्या हो रहा है कि जो 1 साल बाद होना था वो आज हो जाएगा, जो 2 साल बाद होना था वो आज हो जाएगा, जो 3 साल बाद होना था वो आज हो जाएगा, जो 4 साल बाद होना था वो आज हो जाएगा। मीन्स अगले 5 साल में होने वाली वैकेंसी आज ही अराइज हो जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों ने अगले 5 साल में रिटायर होना था वो अभी हो जाएंगे रिटायर। मेरा ख्याल इस बात को आप समझ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इसमें रिस्पांस आएगा वीआरएस में उतना वो डेंजरस है आने वाली वैकेंसीज के लिए, अगले 5 सालों की वैकेंसीज के लिए। क्योंकि जो लोग फ्यूचर में रिटायर होने वाले थे वो अभी रिटायर हो जाएंगे, तो आने वाले साल के अंदर एसबीआई को और अधिक मैन पावर की जरूरत नहीं बनेगी, वो अभी इसको पूरा कर लेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।